we are considering type 5 of short method. We are supposed to obtain particular integral of cos h ax plus b or sin h ax plus b. So the procedure is same for sin h ax plus b and cos h ax plus b. Formula is also same. In circular functions, for sine and cosine, same procedure, same formula. Similarly, here also sin h and cos h both have same procedure and same formula. So before proceeding further, we should just recall the formula. What does the formula says? 1 upon f of d square sin h ax plus b is equals to 1 upon f of a square sin h ax plus b. What are we supposed to do? Replace d square by a square. Replace d cube by a square d. Replace d raised to 4 by a raised to 4. So these are the substitutions that we have to do while finding out this value of particular integral. Same formula goes for cos h ax plus b, right? Now if simply d occurs in the denominator, that is if you have the operator 1 upon d, then it will simply imply one time integration. For 1 upon d square, it will be 2 time integration. If instead of d you have d plus b or d minus b, then you will multiply and divide by the conjugate of the denominator. Say here you multiply and divide by d minus b, so 1 d minus b in the numerator you keep aside for the time being, and this d minus b into d plus b will be d square minus b square. Why? Because a minus b into a plus b is a square minus b square. So by virtue of that formula we will get this. This is the inverse operator and this is the operator. We will first operate this by substituting a square instead of d square. Similarly for d minus b. Before proceeding further, you should know that sin h minus x is minus sin h x and cos h minus x is cos h x. Remember this. Also you need to remember sin h 0 is 0 and cos h 0 is 1. Note down this, it is very important. Moreover, we should also know that derivative of sin h ax is a cos h ax. Derivative of cos h ax is a into sin h ax. Integral of sin h ax is cos h ax upon a, and integral of cos h ax is sin h ax upon a. So there is no change in sign. Sin h becomes cos h becomes sin h. In differentiation and integration, sign remains positive. Very easy to remember. Let's proceed further. We are focusing on how to find particular integral, because complementary function we have done. So we are just finding particular integral in our examples. If in exam they ask you find general solution, you have to find both complementary function and particular integral and add them, and the dependent variable equals to addition of CF and PI will be the solution. That finally you have to submit. So right now we are just focusing on particular integral. कैसे निकालेंगे? Of d square 1y equals to sin h x into sin h 2x into sin h 3x. Now it's product of three functions. Angle is x, 2x and 3x, and operator is not distributive over product. So what we will do? We will convert it into addition or subtraction. How to convert into addition or subtraction? By using hyperbolic formulas. Sin h a into sin h b is equals to cos h a plus b minus cos h a minus b divided by 2. So let us use this, but for the sake of convenience, I will rearrange this product as sin h 3x into sin h 2x into sin h x, only to avoid that minus sign, because this is the biggest angle 3x. I have taken it in first place because there will be no negative sign, and then you don't have to again and again take care of this. So just to avoid that, we are taking in this way. First I am taking this 2, product of sin h 3x and sin h 2x. So sin h sin h b लगाते से a का वैल्यू 3x है, b का वैल्यू 2x. a plus b will be 5x, cos h 5x minus
3 minus 2 will be 1, so it will be cos h x. So finally we get sin h 3x into sin h 2x is subtraction of these two terms. But if you observe, yet we have in product sin h x, and even this is not the standard form, so we have to further apply formula. What's the formula then? First of all you distribute sin h x to both, multiply cos h 5x with sin h x and cos h x with sin h x, and now you see these are both of the same form. The form is sin h a cos h b. A is x, b is 5. Here what's happening? A is x and b is also x. So using this formula, see, you have to learn this formula by heart, because if something goes wrong here and there, you will not be able to get marks. So you have to very well learn this formulas. I have already provided you before starting particular integral. Sin h a cos h b is equals to sin h a plus b plus sin h a minus b divided by 2. ये फॉर्मूला दो टर्म्स को लगाना पड़ेगा, एक इस टर्म को एंड द सेकेंड वन टू दिस टर्म. दोनों टर्म्स को ये फॉर्मूला लगाते हैं. सो इट विल बी what it will be, sin h x plus 5x and x minus 5x, x plus x and x minus x divided by 2. So if you observe carefully, this is 6x, this is minus 4x, this is 2x and this is 0. Fine. So sin h is 0, already noted, sin h is 0 is 0. So we substitute, and sin h of minus 4x is sin h 4x with a minus sign. Sin h minus theta is minus sin h theta. So here there is a minus sign because of this formula. Sin h minus theta is minus sin h theta. Now if you observe this carefully, these are three terms and they three share either plus or minus, and now this is the form in which we can apply the formula, right? We can apply the formula. So now let's get back to our actual problem. अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ राइट हैंड साइड का जो फंक्शन था उसको इतना सिंप्लीफाई किया कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग पाए. तो वी आर जस्ट रिप्लेसिंग दैट फंक्शन विद दिस फंक्शन, एंड 1/4 को साइड में रखकर दिस ऑपरेटर वी विल डिस्ट्रीब्यूट, तीनों को दे देते हैं. सब्ट्रैक्शन या एडिशन पर वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो तीनों को अलग अलग दे दिया. अब इन तीनों को सेम फॉर्मूला लगेगा, मतलब एक ही फॉर्मूला 3 बार लगेगा. व्हाट इज द फॉर्मूला? 1/f of d square sin h ax plus b is equals to 1/f of a square into sin h ax plus b. अगर आप देखोगे पहली टर्म में तो a का वैल्यू 6 है, d की जगह आएगा 6 स्क्वायर प्लस 1. यहाँ पर a की वैल्यू 4 है तो d स्क्वायर की जगह आएगा 4 स्क्वायर. यहाँ पर d की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 2 है, d स्क्वायर की जगह आएगा 2 स्क्वायर. एंड फाइनली वी गेट 1/4 1/37 sin h 6x minus 1/17 sin h 4x minus 1/5 into sin h 2x. And this is the final particular integral of the given differential equation. Let's proceed. So I was discussing कि इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, डिनो जीरो नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है डिनोमिनेटर जीरो हो जाए. तो उस केस में फॉर्मूला क्या जाएगा? सपोज एफ ऑफ ए स्क्वायर जीरो हो रहा है तो फॉर्मूला क्या जाएगा? पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 1/f डैश ए स्क्वायर इंटू साइन एच ए एक्स प्लस बी, प्रोवाइडेड ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है. सपोज करो कि ये भी जीरो हो रहा है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू 1/f डबल डैश एट ए स्क्वायर इंटू साइन एच ए एक्स प्लस बी, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर जीरो नहीं है. तो एटमोस्ट आपको सेकेंड ऑर्डर तक आएगा, उसके आगे नहीं आएगा. यहां तक आपके आने की पॉसिबिलिटी है. इस पॉइंट पे बेस्ड एग्जांपल देख लेते हैं. फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, हम सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं ऑफ डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1
y equals to cos hx. Y is a function of x. This is third order LDE with constant coefficients which is non-homogeneous. ठीक है, CF हम नहीं निकाल रहे, PI पे फोकस कर रहे हैं. पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1 ऑपरेटिंग ऑन कॉस एच एक्स. ये ऑपरेटर कॉस एच एक्स पे ऑपरेट कर रहे हैं. तो डी स्क्वायर, डी क्यूब को लिखा डी स्क्वायर डी, डी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर रखना है, ए की वैल्यू 1 है, डी स्क्वायर की जगह रखा 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इंटू डी इज डी, डी स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर माइनस डी माइनस 1. इनका कुछ नहीं हो सकता, इसलिए अभी ऐसे रिटेन करना है इसको. त्याला ॲज इट इज घ्या. आता हे किती होईल, डी 1 इंटू डी डी, डी प्लस 1 माइनस डी माइनस 1. सो डी माइनस डी प्लस 1 माइनस 1 gets cancelled and the denominator becomes 0. So we are seeing case failure in this case. केस फेल हो रही है, तो इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, फिर यहाँ पर चले जाते हैं जहाँ से शुरू किया था. सो लेट्स बिगिन. यहाँ पे बाय फॉर्म्युला x इंटू ह्या पॉलिनॉमियल फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू कॅपिटल डी, आणि हा नवीन ऑपरेटर जो जनरेट होईल त्याला ऑपरेट करायचं कॉस एच एक्स वर. लेट्स प्रोसीड. x इंटू डी क्यूब का डेरिवेटिव 3d स्क्वायर, डी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d, माइनस डी का डेरिवेटिव -1, -1 का डेरिवेटिव 0. सो x इंटू, अब ये ऑपरेटर कॉस एच एक्स पे ऑपरेट करना है, तो अगेन डी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर रखा हमने, डी स्क्वायर की जगह 1 क्योंकि a 1 है, यहाँ पर 1 रखा. एंड व्हाट वी सी, डी स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर रखे, एंड व्हाट वी सी इट reduces to 3 minus 1 is 2, 2 plus 2d, 2d plus 2 में से 2 कॉमन लिया एंड कीप इट असाइड, x अपॉन 2 कर दिया. अब मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर. डीनो का कॉन्जुगेट क्या है, 1 प्लस डी का 1 माइनस डी, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला के लिए फिर एप्लीकेबल हो जाएगा. 1 माइनस डी को साइड में रखते हैं. 1 माइनस डी इंटू 1 प्लस डी इज अकॉर्डिंग टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इट कम्स आउट टू बी 1 माइनस डी स्क्वायर. अब डी स्क्वायर की जगह 1, बेसिक फॉर्मूला, रिप्लेसिंग डी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. डी स्क्वायर की जगह रखा 1 स्क्वायर. लेकिन फिर भी ये केस फेल हो रही है, 2 बार केस फेलियर आ रहा है. तो ठीक है, इसको यहाँ पर छोड़ देंगे एंड वेयर विल वी गो, हियर, यहाँ पे जाएंगे हम. राइट, यहाँ पर गए हम, x एज इट इज है. अभी इस पे ध्यान दीजिए, इस पे फॉर्मूला लगा रहे, तो एक x इंटू 1/2 इंटू 1 प्लस डी का डेरिवेटिव. 1 प्लस डी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल डी इज 1 चा 0 आणि डी चा 1, 0 प्लस 1 इज 1. द डेरिवेटिव इज 1 and the constant function operating on cos hx is just cos hx. So the final answer is x square into cos hx divided by 2. Is this clear? Shall I proceed further? जायचंय पुढे. ये एग्जाम्पल था जिसमें 2 बार केस फेल हुआ. एक्स स्क्वायर अगर आंसर में आया है, मतलब आप समझ सकते हो कि 2 बार केस फेल हुआ और एक एक्स पहले आ गया फिर एक एक्स आया, एंड दैट बिकम्स एक्स स्क्वायर. यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए प्लीज. जायचंय पुढे. यू जस्ट लेट मी नो इफ स्पीड इज ओके. शैल वी प्रोसीड फर्दर? यस. सो देर इज अ यस फ्रॉम निकिता एंड लेट्स बिगिन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, और रादर नेक्स्ट टाइप. इतना सफिशियंट है. साइन एच कॉस एच के 2 एग्जाम्पल्स हमने देख लिए. एक में केस फेलियर नहीं था, एक में 2 बार केस फेलियर था. अब पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू एन, हो सकता है आपके राइट हैंड साइड में एक्स रेज टू एन हो, पॉलिनोमियल या फिर पॉलिनोमियल इन एक्स, मतलब ये एक टर्म है, हो सकता है ऐसे 2-3 टर्म्स हो, उनमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो. रिमेंबर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर. सो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान में रखिए. ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, राइट.
अब इसमें आपके राइट हैंड साइड पे सपोज ये एक फंक्शन है, तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना हमारा ऑब्जेक्टिव है। वो कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले आपको एफ ऑफ डी में से लोवेस्ट डिग्री टर्म ढूंढनी है। लोवेस्ट डिग्री टर्म मतलब या तो वो कांस्टेंट रहेगा या फिर डी रहेगा या डी स्क्वायर। लोवेस्ट डिग्री टर्म, पॉलिनोमियल डिस्कस करते समय मैंने आपको डिग्री के बारे में बताया था पॉलिनोमियल की। लोवेस्ट डिग्री टर्म जो भी होगी उसको रिकॉग्नाइज करके वो टर्म बाहर लेनी होगी। ये प्रोसीजर है और ये हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही है। जैसे आपने लोवेस्ट डिग्री टर्म बाहर ले लिया, अंदर जो बची हुई टर्म्स है जिसमें से कॉमन लिया गया है, जिनका पावर एक एक से कम हो गया है ऑब्वियसली, क्योंकि हमने वहां से लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन ले ली है, उन टर्म्स को आप रीअरेंज करोगे। रीअरेंज कैसे करोगे? छोटे पार से लेके बड़े पार तक, लोएस्ट टू हाईएस्ट पार, असेंडिंग पावर्स ऑफ डी में आपको उसे रीअरेंज करना है। तो आपका फंक्शन एफ ऑफ डी ऐसा दिखने लगेगा, 1 प्लस माइनस फाइव ऑफ डी। या तो प्लस आएगा बीच में या फिर माइनस आएगा, और जो बचा हुआ रेसिड्यू है उसको हमने नाम दे दिया फाइव फंक्शन ऑफ डी। ठीक है, तो एफ ऑफ डी ऐसा हो गया 1 प्लस माइनस फाइव ऑफ डी। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1 अपॉन 1 प्लस माइनस फाइव ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन एक्स रेज़ टू n। अब इस ब्रैकेटेड क्वांटिटी को अगर हम न्यूमरेटर में ले लेते हैं तो इट विल बी रेज़ टू माइनस 1। 1 अपॉन 2 है सपोज, तो 2 को मुझे ऊपर लेना है तो इट विल बी 2 रेज़ टू माइनस 1 ऑब्वियसली। उसी लाइन्स पे दिस विल बी 1 प्लस माइनस फाइव ऑफ डी चा इनवर्स आपल्याला एक्स रेज़ टू n चा पर्टिकुलर इंटीग्रल काढण्यासाठी। अभी बायनोमियल एक्सपांशन थ्योरम है। बायनोमियल एक्सपांशन थ्योरम है, दो फॉर्मूलेज हमें याद रखने हैं। 1 प्लस ए इनवर्स इक्वल्स टू, सपोज प्लस आ गया तो उसको ये फॉर्मूले से आप डील करोगे, एक्सपैंड करोगे। फॉर प्लस इट इज 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस ए रेज़ टू 4 माइनस एंड सो ऑन। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अगर इसका फॉर्मूला उसको लगा दिया, उसका इसको लगा दिया तो इट विल बी रॉन्ग। यू हैव टू बी वेरी वेरी केअरफुल। प्लस साठी काय होतं? अल्टरनेट प्लस मायनस प्लस मायनस प्लस मायनस अँड सो ऑन। आणि मायनस साठी काय होईल? 1 मायनस ए इनव्हर्स साठी काय होईल? सगळेच प्लस, ए चा पॉवर वाढत जाईल आणि सगळे पॉझिटिव्ह असणार आहे। I hope these two formulas are very clear to you, and these two formulas will be applied as per the suitability. प्लस होगा तो ऊपर वाला जाएगा, माइनस होगा तो नीचे वाला जाएगा। Once again I will say प्लस वाले एक्सपेंशन फॉर्मूला में प्लस माइनस माइनस वाले फॉर्मूला में ऑल प्लस, रिमेंबर। अब थोड़ा सा नोटेशंस को भी समझ लेते हैं ताकि आगे आसानी हो। डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज dx। एक्सचं डेरिवेटिव किती असतं? 1। समजा d2x आहे, मग d2x कसं तुम्ही इव्हॅल्युएट करणार? d2 म्हणजे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्ह ऑफ एक्स, म्हणजे डेरिवेटिव्हचा डेरिवेटिव्ह। dx ऑलरेडी काढलेला आहे आपण 1, मग ह्याची किंमत 1 घेतली आणि डेरिवेटिव्ह ऑफ 1 इज 0। सो ये नोटेशंस को ऐसे आपको हँडल करना है। आता मला थर्ड ऑर्डरचं डेरिव्हेटिव्ह पाहिजे एक्सचा थर्ड ऑर्डरचा विल बी व्हॉट? एक डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स। सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह किती आला? 0, आणि 0चं डेरिव्हेटिव्ह किती होईल? 0। डी रेस टू 4 किती होईल? 0, कारण 0चा डेरिव्हेटिव्ह। डी रेस टू 5 किती होईल? 0चा डेरिव्हेटिव्ह। पुढचे सगळे 0। तो ऐसे हो गए एक्स का डेरिवेटिव, उसका सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, एक्स का थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे आइए, एक्स स्क्वायर का फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, ये यहाँ से फेच करेंगे, इसकी वैल्यू 2x है, यहाँ पर रखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ 2x विल गिव यू 2। d2 ऑफ एक्स स्क्वायर, इसे क्या कहेंगे? d2 ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2। सिमिलरली d3 ऑफ एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव्हचा डेरिवेटिव्ह,
टूचा डेरिवेटिव्ह किती होईल 0. थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्ह एक्स स्क्वेअरची 0 झाली. फोर्थ ऑर्डर पण 0 होईल कारण 0चं डेरिवेटिव्ह पुढे 0, त्याचा पुढचा 0चं डेरिवेटिव्ह पुन्हा 0 एंड सो ऑन. ओके, तो आप यहां से क्या इन्फरेंस क्या निकाल पा रहे हो, क्या कंक्लूजन है? कंक्लूजन ये है कि जब कभी इन जनरल dm अपॉन एक्स, dm ऑफ x रेज टू n होगा, mth ऑर्डर की डेरिवेटिव ऑफ nth पावर ऑफ x, ये 0 हो जाती है जब m ज्यादा रहेगा n से. आपने यहां पर देखा x रेज टू 2 था, तो इसका पहला नॉन जीरो आया, दूसरा नॉन जीरो आया, लेकिन तीसरा यहाँ पर 3 2 से बड़ा हो गया, तो तीसरे ऑनवर्ड्स सारे 0 हो जाएंगे. यहाँ पर x रेज टू 1 था, तो जब इक्वल है तो नॉन जीरो. 2 इज ग्रेटर देन x रेज टू 1, सो दिस इज 1. 2 1 से बड़ा है तो डेरिवेटिव 0. Whenever, this is very important point, you just note down, mth order derivative of nth power where m is greater than n is 0, वो 0 रहेगा तो उसके आगे के सारे डेरिवेटिव्स ऑब्वियसली 0 होंगे. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. यस, यहां तक आ गया सबको समझ में? शैल आई प्रोसीड फॉर एग्जाम्पल? अगर क्लियर है तो आई विल प्रोसीड. कुछ पूछना है तो पूछ लो. कुछ पूछना है तो पूछ लो. शैल आई प्रोसीड फर्दर? अब्दुल रहमान, अश्विनी, पूजा, सूरज. यस, दैट्स ग्रेट. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई एम टीचिंग. चला पुढे जाऊयात आता. येस, दॅट्स गुड किरण, व्हेरी गुड. फाइंड पर्टिक्युलर इंटिग्रल ऑफ d square plus 5d plus 4 operating on y, d square plus 5d plus 4 operating on y equals to 2 minus 3x. पहले इसको समझ लेते हैं. 2 minus 3x ये पॉलिनोमियल है x का. 2 into x raised to 0 minus 3 into x raised to 1. मैम स्क्रीन दी सकते हैं? यस यस, वो आपको देखने के लिए मैं इधर आ जाती हूँ तो मैं. यस यस यस, नाउ इट इज विजिबल आई गेस. मे आई प्रोसीड? फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ d square plus 5d plus 4 ऑपरेटिंग ऑन y गिविंग यू 2 minus 3x. अब ये 2 को आप कांस्टेंट वाली ट्रीटमेंट भी दे सकते हो और 3x को आप पॉलिनोमियल वाली जो अभी हमने डिस्कस की वैसी भी दे सकते हो, बट दोनों को अलग अलग फॉर्मूला से डील करना बेटर वे. इस पूरे को एक पॉलिनोमियल ट्रीट करके इस पे फॉर्मूला चलाओ ऊपर वाला. चॉइस इज योर्स. ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो. लेट्स प्रोसीड. तो is the screen visible? Please let me know, is the screen visible? Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. Yes. तो हम क्या करेंगे, जो भी राइट हैंड साइड फंक्शन है ना, पहले उसके फटाफट डेरिवेटिव्स निकाल लेते ताकि एक आइडिया आ जाए कि वो सीरीज कहां तक जाने वाली है. तो मैंने लिया राइट हैंड साइड फंक्शन 2 minus 3x. 2 minus 3x का डेरिवेटिव निकाल लेते पहले. 2 का डेरिवेटिव 0, माइनस 3x का डेरिवेटिव -3. 2 minus 3 इज -3. तो राइट हैंड साइड फंक्शन का पहला डेरिवेटिव है -3. सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव रहेगा डेरिवेटिव का डेरिवेटिव. पहला डेरिवेटिव उसका -3 है और -3x का डेरिवेटिव विल बी 0 ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए ये फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन है. इसकी डिग्री कितनी है 1, और 1 का एटमोस्ट फर्स्ट वाला ही नॉन जीरो आएगा. सेकेंड ऑनवर्ड सारे 0 हो जाएंगे. इसीलिए मैंने लिखा
हियर आफ्टर ऑल हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स आर जीरो. वी नीड टू नोट दिस, क्योंकि फिर वो सीरीज वहां पे ट्रंकेट हो जाएगी. जहां से जीरो होने शुरू होते हैं हम उन टर्म्स को ऑपरेट करेंगे तभी उसका आंसर जीरो आएगा. तो फिर वहां पे वो सीरीज ट्रंकेट हो जाएगी, मतलब कट हो जाएगी, क्योंकि वहां से ऑनवर्ड जीरो ही आंसर. एंड जीरो प्लस एनीथिंग इज द सेम थिंग, राइट. पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4 ऑपरेटिंग ऑन 2 माइनस 3x. अब यहां पर लोवेस्ट डिग्री टर्म, पहली टर्म की डिग्री 2 है, दूसरे टर्म की डिग्री 5 है, आई मीन 1 है, तीसरे टर्म की डिग्री 0 है. हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नहीं बोल रहे, हम पॉलिनोमियल की डिग्री की बात कर रहे हैं. ये पॉलिनोमियल इन डी है और इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 0, बिकॉज 4 इज 4 इंटू डी रेज टू 0. सो लोवेस्ट डिग्री टर्म यहां पर 4 है. 4 को कॉमन लिया जाएगा एज पर प्रोसीजर. 4 को मैंने ले लिया बाहर. अब 4 को कॉमन लिया न्यूमरेटर में से, ऊपर से, तो डिनोमिनेटर में डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 तीनों को देना पड़ेगा. तो दैट इज व्हाट आई हैव डन. अब ये 1/4 को साइड में रखते हैं. 1 अपॉन डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 5d अपॉन 4 प्लस 4 अपॉन 4 इज 1. यस, तो अभी पॉलिनोमियल फंक्शन पे ही काम चल रहा है, उसको हम इजी बना रहे हैं. ठीक है, तो 1 प्लस अब मैंने क्या बोला था आपको रीअरेंज करना है. रीअरेंज कैसे करना है आपको? असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे पार की टर्म पहले और फिर बढ़ती जाए, है ना. तो ये पीछे जाएगी और ये सामने आएगा. अभी ऐसे भी, यहां पर ऐसे भी रखा तो चलेगा. हमारा मेन मोटिव है यहां पर 1 होना चाहिए. ठीक है, ये मैटर नहीं करता, बट यहां पे नेसेसरीली 1 होना चाहिए. और अब ये आप देखोगे और इससे कंपेयर करोगे. अब इस स्टेप में और इस स्टेप में क्या डिफरेंस है, ये हमने ऊपर ले लिया है. जैसे कि 1 अपॉन सम ए है, तो 1 अपॉन ए विल बी ए इनवर्स, तो ये ऊपर जाके बन गया इनवर्स. सो दिस इज इनवर्स ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन द फंक्शन 2 माइनस 3x. अब इसको इससे कंपेयर कीजिए. 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 5d अपॉन 4 विथ 1 प्लस ए इनवर्स. अगर मैं इसे a अज्यूम कर लू, इस ब्रैकेट को मैं a अज्यूम कर लू, तो इसकी एक्सपेंशन क्या हो जाएगी? 1 माइनस a प्लस ए स्क्वेअर मायनस अँड सो ऑन. ह्याला आपण a गृहीत धरलं तर ह्या इन्व्हर्स चा एक्सपान्शन किती होईल? 1 मायनस a प्लस ए स्क्वेअर मायनस अँड सो ऑन. आता मी 3च टर्म्स लिहिल्या आहेत का? त्याचं कारण आहे, कारण ह्या ऑपरेटरला द्यायचं आहे आपल्याला. इज इट? हे बघा, हे आपण इथे सोडलं होतं, मग ह्याच्याविषयी बोललो आणि आता ह्याचा एक्सपान्शन इथे आणून ठेवलेला आहे आपण. आदल्या 3 टर्मच मी लिहिलेल्या आहे. त्याचं कारण आहे, कारण पुढच्या सगळ्या टर्म्सचं 0 होणार आहे. इनफॅक्ट इथे पण 0 होईल. आता आपल्याला काय करायचं आहे, हा फंक्शन वाटून टाकायचं आहे. 1 इंटू करा, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. 1 को दे दो 1 इंटू, इस ऑपरेटर को दे दो प्लस इस ऑपरेटर को दे दो, माइनस एंड सो ऑन, सबको भी दे दिया. ठीक है, अब इस फंक्शन के हम डेरिवेटिव्स को पहले निकाल के रख चुके हैं, है ना. तो 1 इंटू 2 माइनस 3x विल बी 2 माइनस 3x. d2 को दिया, d2 को दिया, 5d को दिया, दोनों में इंटरनल और बांट दिया उन्हें. ठीक है, अब इस टर्म को ध्यान से देखिए. डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 5d अपॉन 4 होल स्क्वायर, इसकी एक्सपांशन a प्लस बी होल स्क्वायर से आप करोगे तो इसका पावर 4 जाएगा, a स्क्वायर, b स्क्वायर, इसका पावर d स्क्वायर हो जाएगा, d रेस टू 4 d स्क्वायर, और 2ab से ये d क्यूब हो जाएगा. यस,
पूछिए, क्या पूछना है? कुछ पूछना है? Shall I proceed further? A plus b होल स्क्वायर से इसकी एक्सपेंशन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. हॅलो हाँ हाँ विचारा. मॅम स्क्रीन नाही दिसत आहे. स्क्रीन विजिबल नहीं है? नाही. यस आदर्श, स्क्रीन दिख रही है मेरी? पूजा, श्वेता, अभी दिखती मैडम, सबको दिख रही है? आगे बढ़े. Yes. Switch off your mic, all of you. Please switch off your mic. We are running short of time. Switch off your mic and let's. Who is it? Who is it? किरण, स्विच ऑफ कर बेटा माइक तुझा. किरण, स्विच ऑफ योर माइक. Am I audible, Kiran? Yes. So you have switched off your mic. हाँ, तो 1 को दिया, इसे दिया, इंटरनली आई होप द स्क्रीन इज विजिबल. 1 को दिया, इंटरनली दोनों को दिया. अब यहाँ पे बात कर रहे थे हम, a प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंशन करेंगे तो इसका d⁴ आएगा, इसका आएगा d स्क्वायर और 2ab से d क्यूब आएगा, और तीनों भी d⁴, d क्यूब और d स्क्वायर इस पे ऑपरेट करोगे तो उसका रिजल्टेंट है 0. ये हमने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था. सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव 0 है तो नेसेसरीली थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन सारे 0 होंगे. इसीलिए ये सीरीज छोटी हो जाएगी, इसकी बाकी की टर्म्स 0 हो चुकी है, तो ये सीरीज में कितनी टर्म्स बचेगी? केवल ये 2-3 टर्म्स बचेगी. ये हाईलाइटेड टर्म 0 हो गई, तो इट विल बी 1/4 ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट 2 - 3x माइनस, अब ये भी क्या है? सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव. सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव ऑफ 2 - 3x होल डिवाइडेड बाय 4. सेकेंड ऑर्डर का हमने ऊपर ऑलरेडी निकाल रखा है, वो 0 है. ये क्वांटिटी भी 0 हो गई, सेकेंड क्वांटिटी 0 हो गई. थर्ड नॉन 0 आएगी. 5 टाइम्स d ऑफ 2 - 3x डिवाइडेड बाय 4. डेरिवेटिव ऑफ 2 - 3x इज हाउ मच? वो हमने ऊपर ऑलरेडी रेडिली निकाल के रखा है, -3. सिर्फ उसको फेच करके यहाँ पे रखना है. यहाँ पे रखा मैंने -3. सो अल्टीमेटली इट इज 1/4 ब्रैकेट 2 - 3x प्लस, because minus into minus becomes plus, so 5 into 3 is 15, 15/4. अब ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू ब्रैकेट 2 - 3x प्लस 15 डिवाइडेड बाय 4. सो अभी मल्टीप्लाई कीजिए, 8 - 12x प्लस 15 एंड 8 प्लस 15 इज 23. 23 - 12x अपॉन 4 into 4 is 16, and this is the value of particular integral corresponding to the function polynomial in x, which is 2 - 3x. आ गया समझ में? x⁴n को शॉर्ट मेथड में कैसे डील करना है, यहां तक अगर सभी को क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं. इज दिस क्लियर? Shall we proceed further? Find particular integral of d cube plus 2d square plus 4d plus 7y equals to x. अब देखिए,
राइट हैंड साइड में केवल x है और x का तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव 1 आएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑनवर्ड्स ऑल आर 0। तो फटाफट हमने पी आई लिख दिया 1/dq प्लस 2d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 7 ऑपरेटिंग ऑन x। लोवेस्ट डिग्री टर्म ऑब्वियसली कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही लोवेस्ट डिग्री टर्म है और वो है 7। 7 हमने कॉमन लिया, 7 न्यूमरेटर में से कॉमन लिया है तो डिनोमिनेटर में सबको देना पड़ेगा इफेक्ट को नील करने के लिए, सबको 7 7 7 7 दे दिया। फाइन। अब सो दिस 7/7 इज 1। 1 को सामने लिखेंगे और फिर छोटे से बड़ा। सो शफलिंग की हमने, 1 को पहले लिखा प्लस फिर d वाला लिखा, फिर d2 वाला लिखा और फिर d क्यूब वाला। अब ये थोड़ा थोड़ा 1+5 सॉर्ट ऑफ दिखने लगा है। 1+5 ये ब्रैकेटेड क्वांटिटी 5 है, ये इतना, ये हमारा 5 है। 1+5 ऑफ d, तो ऊपर जाके ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट ऊपर जाके हो जाएगा इनवर्स स्क्वायर ब्रैकेट टू द पावर -1 ऑपरेटिंग ऑन x। ठीक है। अब ये कैसा है, 1+a सॉर्ट ऑफ है, 1+a इनवर्स 1+a होल रेज टू -1 इज प्लस के लिए क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस 1 -a प्लस a स्क्वायर माइनस a क्यूब प्लस एंड सो ऑन ऑपरेटिंग ऑन x फंक्शन। आता x का है सगळ्यांना देऊन टाका, 1 इंटू x मायनस ह्या ऑपरेटरवर x ऑपरेट, हा ऑपरेटर x वर ऑपरेट होईल प्लस दिस ऑपरेटिंग ऑन x का तो पहले ऑर्डर का डेरिवेटिव ही नॉन जीरो है, बाकी सब जीरो है। तो ये जो कि रेस टू 2 है इसका मिनिमम d स्क्वायर रहेगा, ये d स्क्वायर का स्क्वायर जाएगा, ये d क्यूब का स्क्वायर जाएगा, d स्क्वायर d रेस टू 4 d रेस टू 6 और ऐसे हायर ऑर्डर्स। तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है क्योंकि ये क्वांटिटी जब x पे ऑपरेट होगी और दूसरे जो कि इससे बड़े हैं क्यूबिक एंड फोर्थ पावर एंड सो ऑन, ये सारे जीरो होंगे, इसीलिए पहले 2 टर्म्स ही बचेगी, उस पे काम करते हैं। अतः x प्रत्येकाला देऊन टाका, x माइनस 4/7 डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2/7 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x प्लस थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x डिवाइडेड बाय 7। ओके, so what it will be, for x as it is 4/7, derivative of x is 1 into 4/7 is 4/7, 2/7 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x चा पहिला डेरिवेटिव 1, पुन्हा 1 चा डेरिवेटिव म्हणजे सेकंड ऑर्डर इज 0 आणि थर्ड पण 0 होईल कारण सेकंडच 0 आहे, सेकंडच्या पुढून सगळे 0। किती उरलं मग इथे 4/7, x मायनस 4/7 cross multiplication gives 7x minus 4 divided by 7 and that 1/7. So ultimately particular integral is 7x minus 4 divided by 49। अगर ये आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे और एक एग्जाम्पल और फिर ये केस भी खत्म हो जाएगा आज ही, फिर दूसरे दिन रिकॉल करने को आपको बहुत दिक्कत होती है तो हम इसे आज ही फिनिश करते हैं। अब ये थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान से देखिए इसकी बारीकियों को, प्लस माइनस को। लेट्स प्रोसीड। फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ d स्क्वायर माइनस 2d ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल्स टू 3x क्यूब। d स्क्वायर माइनस 2d ऑपरेटिंग ऑन y इज इक्वल्स टू 3x क्यूब। तो 3x क्यूब ये फंक्शन है, इसके डेरिवेटिव्स को ढूंढते हैं पहले। 3x क्यूब का पहला डेरिवेटिव इज 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, दैट इज 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इज हाउ मच 3 इंटू x स्क्वायर। सो इन टोटॅलिटी इट इज 9x स्क्वेअर। 3x क्यूबचा डेरिवेटिव इज 9x स्क्वेअर। आता सेकंड ऑर्डरचा डेरिवेटिव त्याच फंक्शनचा, सेकंड ऑर्डरचा डेरिवेटिव काय असेल, डेरिवेटिवचा डेरिवेटिव, मग 9x स्क्वेअर का डेरिवेटिव क्या है
9 इंटू 2 x रेज टू 1 दैट इज 18x. थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या रहेगा? सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव का डेरिवेटिव 18x का डेरिवेटिव 18. फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव 0. फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव 0 का डेरिवेटिव 0. सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव 0 का डेरिवेटिव 0. फोर्थ डेरिवेटिव ऑनवर्ड्स एक्स क्यूब के सारे डेरिवेटिव्स 0 होंगे. पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड. तो डेरिवेटिव्स हम निकाल चुके हैं. अब देखते हैं पी आई कैसे ढूंढना है. पी आई कैसे ढूंढना है. अब फिर से क्वेश्चन पे जाइए. पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d ऑपरेटिंग ऑन 3x क्यूब. हाउ मच इट इज? 3x क्यूब. सो अब इसमें से आप मुझे बताइए लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है? डी स्क्वायर. इसकी डिग्री 2 है पॉलिनोमियल पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसकी डिग्री 1. सो माइनस टू डी लोएस्ट डिग्री टर्म है. यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, तो -2d लोएस्ट डिग्री टर्म है, और -2d को बाहर लाना पड़ेगा. सिर्फ 2d को नहीं ला सकते आप, माइनस साइन के साथ लाना पड़ेगा नेसेसरीली. पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड. क्योंकि 1 प्लस आता है ना, तो 1 ही चाहिए, -1 नहीं चलता है. उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है. तो भी हमको स्ट्रक्चर को फॉलो करना है तो वैसे ही चलना पड़ेगा. तो -2d कॉमन लिया मैंने. डी स्क्वायर के डिनो में भी -2d दे दिया. -2d डिवाइडेड बाय -2d ऑपरेटिंग ऑन 3x क्यूब. हा -1 अपॉन 2d साइड मध्ये राहू दे आपण. डी स्क्वायर अपॉन -2d d अपॉन -2 प्लस दिस माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस 2d अपॉन 2d is 1. So it is minus d by 2 plus 1. It is 1 minus d by 2. शफल केला पण त्याला, कारण 1 प्लस मायनस 5d सारखं करायचं आपल्याला, म्हणून 1 आधी घेतलं, -d/2 मागे टाकलं. ठीक आहे. आता 1 मायनस d/2 वरती घेतलं, मग ते झालं इनव्हर्स. दिस इनव्हर्स ऑपरेटर शुड ऑपरेट ऑन 3x क्यूब. अब 1 माइनस a इनवर्स 1 माइनस a, जहां पर a की वैल्यू है d/2. 1 माइनस a इनवर्स इज हाउ मच? मायनस साठी सगळं प्लस 1 प्लस a स्क्वेअर प्लस a क्यूब प्लस a रेज टू 4 अँड सो ऑन. अँड दिस शुड ऑपरेट ऑन 3x क्यूब. आता याचा फोर्थ ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह पासून सगळे 0 आहे, म्हणून थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह पर्यंत लिहिलंय, आणि ते सगळे 0 होतील. मग ते 0 झाले, आणि ही इन्फिनाइट सिरीज आता फायनाइट झालेली. याच्यात फक्त 4 टर्म्स उरलेले आहेत. राईट. तर व्हॉट विल बी द डेरिव्हेटिव्स देन? व्हॉट विल बी द आन्सर? सो व्हॉट विल बी द आन्सर? थ्री एक्स क्यूब देऊन टाका सगळ्यांना. ह्याला दिलं, d ला द्या, d स्क्वेअर अपॉन 4 ला द्या, आणि d क्यूब ला द्या. ठीक है. अब ये हमें सॉल्व करना है. लेट अस सॉल्व दिस. हाउ मच इट विल बी? डेरिवेटिव ऑफ 3x क्यूब निकाल के रखा है हमने. डेरिवेटिव इज 9x स्क्वायर. यहां पे रखिए. डेरिवेटिव इज 9x स्क्वायर. डिवाइडेड बाय 2. d2 ऑफ 3x क्यूब. अब ये क्या हो जाएगा? d2 अपॉन 4 होगा, क्योंकि d/2 होल स्क्वायर है. रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. व्हाट इट विल बी? d स्क्वायर अपॉन 4. d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. एंड इट शुड ऑपरेट ऑन दिस. इस पे d स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 9x स्क्वायर का डेरिवेटिव 18x, जो हम निकाल करके रखे हैं ऊपर. 18x d2 3x क्यूब.
d2 3x क्यूब, ये वाली वैल्यू, एंड डिनोमिनेटर का 4 एज इट इज रहेगा. d2 3x क्यूब विल बी 18x. सिमिलरली ये कितना होगा, d क्यूब अपॉन 8. d cube upon 8. So this will be how much? This is 18x divided by 4. d2 on 3x cube is 18x divided by 4, and this is 18.